ایک ایسی سچی سروائیول مووی جو کہ اتنی پاپولر ہو گئی کہ اس کے ہیرو کو اس مووی کی وجہ سے آسکر ایوارڈ بھی دے دیا گیا۔ دوستو، یہ اتنی ایموشنل سٹوری ہے کہ دیکھتے ہی شاید آپ کو رونا آ جائے۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے کہانی میں 1823 کا وقت دکھایا جاتا ہے، جہاں ایک بہت بڑے گھنے جنگل میں کچھ 45 لوگ ہیں جو کہ یہاں پر جانوروں کا شکار کر کے ان کی کھالوں کو بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اسی گروپ میں ایک ہیو گلاس آدمی ہے اور اس کا بیٹا ہاک بھی۔ یہ سب جب جنگل میں تھے تو ان کے اوپر ایک اور قبیلہ آ کر حملہ کر دیتا ہے جو کہ ان کے کافی سارے لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ یہ قبیلہ اصل میں حملہ ان کے اوپر اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس قبیلے کا جو سردار تھا نا، اس کی بیٹی کو کسی نے کڈنیپ کر لیا، تو ان کو لگا کہ شاید یہ ان کا ہی کام ہے۔ ان کے کافی سارے لوگوں کو مار دیا گیا تھا، اس لیے ان میں اب بس صرف 10 لوگ ہی بچے ہیں جو کہ جلدی سے اپنی ناؤ میں بیٹھ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ مگر خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں کیونکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ پورا ایریا انہی قبیلے والوں کا ہے۔ یہ لوگ ابھی اپنے ناؤ پر بھی سیف نہیں تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ابھی کہیں سے بھی تیر آ سکتا ہے۔ اس گروپ کا جو ہیڈ ہے وہ ہیو گلاس سے پوچھتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ گلاس کہتا ہے کہ ہمیں ناؤ کو چھوڑ کر زمین کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، مگر ان کے ہی گروپ کا ایک آدمی گلاس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ اگر ہم زمین کے راستے سے گئے پھر تو ہم جلدی مارے جائیں گے، زمین کا راستہ بہت لمبا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں۔ پر یہاں کا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ گلاس اس ایریا کو، اس ٹیریٹری کو گلاس بہت اچھے سے جانتا ہے، تو اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں گھر سیف پہنچائے۔ تو اب یہ طے کیا جاتا ہے کہ وہ زمین کے راستے سے ہی جائیں گے۔ سب کے سب اپنی ناؤ سے نیچے اتر جاتے ہیں اور ناؤ کو سمندر میں کھلا ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ ناؤ بہہ کر آگے چلی جائے اور قبیلے والوں کو ہماری لوکیشن کا نہ پتہ چل سکے۔ اترنے کے بعد وہ تمام جانوروں کی کھالیں جو کہ انہوں نے جمع کی تھی ان کو یہ پتھروں کے نیچے چھپا دیتے ہیں تاکہ فیوچر میں اگر یہاں پر آ سکیں تو ان کی کھالیں ان کو مل جائیں۔ اب یہ جنگل کی اور بڑھنا شروع کرتے ہیں، مگر یہاں پر سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ یہاں کی سردی بہت خطرناک ہے اور ٹھنڈ کا موسم آنے والا ہے اور ان کا راستہ بھی تو کئی ہفتوں کا ہے۔ ان کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں، انہیں اس ٹھنڈ کا مقابلہ تو کرنا ہی ہوگا۔ خیر، اب جنگل میں تھوڑا آگے چلنے کے بعد رات ہو جاتی ہے اور یہ وہیں پر سو جاتے ہیں۔ ہاں، مگر ان کا ناؤ کو ندی میں چھوڑنے کا فیصلہ بڑا زبردست تھا کیونکہ وہ ناؤ اس قبیلے کے لوگوں کے ہاتھ لگ ہی جاتی ہے۔ ناؤ کو خالی دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اب جنگل سے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نشان تو نارتھ کی طرف ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ یہاں سے نارتھ کی طرف گئے۔ اب یہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بھی ان کے پیچھے نارتھ کی طرف جائیں گے۔ دوسری طرف کیپٹن اور اس کی ٹیم لگاتار نارتھ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ لوگ مستقل ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد یہ لوگ تھوڑا تھک جاتے ہیں اور آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر رک جاتے ہیں، پر گلاس وہاں پر اکیلے ہی اپنی بندوق لے کر جنگل میں تھوڑا ٹہلنے کے لیے آگے جاتا ہے۔ ابھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے اور اپنے سامنے کچھ بھالوں کے بچوں کو پاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، ایک بہت بڑا بھالو اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے۔ اس کی بندوق بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی اور بھالو نے اسے کافی زخمی کر دیا۔ بھالو جیسے ہی پیچھے ہٹتا ہے تو گلاس فٹافٹ اپنی بندوق اٹھا لیتا ہے۔ بھالو ایک مرتبہ پھر سے گلاس کی جانب بڑھتا ہے، پر گلاس اپنی بندوق سے اسے گولی مار دیتا ہے، مگر کیونکہ بھالو اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ اس کے اوپر تو گولی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ پھر سے گلاس پر جھپٹ پڑتا ہے اور اسے ادمرا کر دیتا ہے، مگر وہ پھر بھی بہت ہمت کرتے ہوئے اپنی جیب سے کسی طرح سے چاقو نکالتا ہے۔ بھالو بھی اب گولی لگنے کی وجہ سے تھوڑا لڑکھڑانے لگا تھا۔ تیسری مرتبہ پھر جب بھالو گلاس کے اوپر جھپٹتا ہے تو گلاس بھی اس بھالو کے اوپر اپنی چاقو کی مدد سے بار بار وار کر رہا تھا۔ اسی لڑائی میں وہ دونوں پھسل کر ایک ڈھلان سے نیچے گر جاتے ہیں اور بھالو سیدھا گلاس کے اوپر جا گرتا ہے۔ لیکن دوستو، بھالو اس ٹائم مر گیا تھا۔ گلاس بھی تقریباً ادمرا ہو گیا تھا کیونکہ بھالو نے اس کو بہت زیادہ زخمی کیا تھا، بہت زیادہ چوٹ پہنچائی، انفیکٹ اس کا گلا بھی بری طرح سے پھاڑ دیا۔ وہ درد سے چلا رہا تھا، تبھی اس کے ساتھی وہاں پر آ جاتے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ گلاس بہت بری حالت میں ہے اور بھالو اس کے اوپر گرا ہوا ہے۔ بڑی ہی مشکل سے وہ بھالو کو اس کے اوپر سے ہٹاتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک آدمی گلاس کے زخموں کو سلنے لگتا ہے۔ اب کیونکہ گلاس کا پاؤں بھی یہاں پر ٹوٹ گیا تھا اور وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، ان لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ اب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوسری طرف ہم قبیلے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے ہاتھ ان کی کھالیں لگ چکی تھیں۔ وہ ان کھالوں کو بیچ کر بدلے میں بہت ساری بندوقیں خرید لیتے ہیں۔
क्योंकि इससे पहले तो वो चाकू और तीरों से इन पर वार कर रहे थे ना, पर अब इन्होंने घोड़े और बंदूकें खरीद ली, जिसकी वजह से ग्लास की टीम को और भी ज्यादा खतरा है। यहाँ पर ये 9 लोग ग्लास के लिए एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाते हैं। ग्लास को वो इस पर लिटा कर आगे बढ़ने लगते हैं, मगर अब आगे का रास्ता जरा चढ़ाई का है, जिससे ग्लास को ऊपर ले जाना इंतहाई मुश्किल था। तभी में से एक आदमी कहता है कि ग्लास के मुंह के ऊपर कपड़ा रखो। दरअसल वो आदमी ग्लास को गोली मारना चाहता था। एक तो ये कि ग्लास बहुत ज्यादा तकलीफ में था, वैसे भी वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता, और इनके लिए भी ग्लास को आगे ले जाना नामुमकिन है। लेकिन ग्लास का बेटा यहाँ सबसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत करें, जिस पर उस कैप्टन को ग्लास पर तरस भी आ जाता है, क्योंकि अब तक ग्लास की वजह से ही तो ये सब लोग बचे हुए थे। कैप्टन अपने आदमियों से कहता है कि जो कोई भी ग्लास के साथ यहाँ पर रुकेगा उसे रॉकी माउंटेन फर कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे, क्योंकि ग्लास ने अब तक इन सब की मदद की थी, क्योंकि ये चाहते थे कि ग्लास को नेचुरल डेथ मिले। ग्लास के मरने के बाद वो उसके लास्ट रिचुअल्स परफॉर्म करके वहाँ से निकल जाएं। इस पर ग्लास का बेटा कहता है कि मैं रुकूंगा। साथ एक और लड़का कहता है कि नहीं, मैं भी रुकूंगा, चाहे मुझे $70 मिले या ना मिले। इनमें से एक आदमी जिसका नाम फिट्स होता है, वो कहता है अरे $70 तो बहुत कम है। कैप्टन कहता है तो ठीक है, फिर $100। ग्लास का बेटा और वो दूसरा लड़का कहता है कि तुम हमारे डॉलर्स भी रख सकते हो। फिट्स कहता है अरे वाह, $300 तो मुझे बहुत हो जाएंगे, इससे तो मैं अपना घर भी खरीद सकता हूँ। वो भी अब इनके साथ यहाँ रुकने को तैयार हो जाता है। अब ये 3 और ग्लास यहीं पर रुकते हैं और बाकी के लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्लास की हालत क्योंकि बहुत खराब है, फिट्स को लगता है कि ये 1-2 दिन में मर जाएगा, मगर ग्लास नहीं मरता, वो अभी भी जिंदा है। एक दिन शाम में जब ग्लास अकेला है तो फिट्स उसके पास आता है, कहता है कि अरे तुम मरते क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से हम सबकी जान चली जाएगी, क्योंकि तुम ही हो जो अपनी जान देकर अपने बेटे और हम सबकी जान बचा सकते हो, वरना अगर कबीले के लोग यहाँ पर आ गए ना तो वो हम सबको मार देंगे। इतना कहकर अब वो ग्लास के मुंह और नाक पर हाथ रखकर उसकी सांस बंद करने की कोशिश करता है। ग्लास तड़प रहा था, उसकी सांसें रुक रही थी। इतनी देर में पीछे ग्लास का बेटा आ जाता है, जो कि अपनी बंदूक फिट्स के सर पर दे मारता है। फिट्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था, मगर ग्लास का बेटा अपनी बंदूक अब फिट्स के ऊपर तान देता है। वो कहता है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मगर फिट्स भी बहुत बेरहम था। वो अपना चाकू ग्लास के बेटे के पेट में स्टैब कर देता है कि ग्लास का गला भी पूरी तरह से कटा हुआ था, वो मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं सकता था। ग्लास बेचारा तो खुद अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, ऐसे में वो अपने बेटे की क्या ही मदद करता, वो बस अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखता है। मारने के बाद अब वो ग्लास के बेटे की लाश को कहीं दूर ले जाकर किसी ढलान के पीछे छुपा देता है, आके जब वो तीसरा लड़का आए तो उसे कुछ पता ना चले। जब वो आता है तो ग्लास भी उसे कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि उसका गला तो कटा हुआ था, वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता था। रात होने में फिट्स और वो लड़का दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही फिट्स उस लड़के के कान में आके कहता है कि जल्दी उठो, वो कबीले के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है, कहता है कि ग्लास का बेटा हॉक कहाँ है। इस वक्त तो ग्लास जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया था कि उसके मरने के बाद उसके लास्ट रिचुअल्स अच्छे से परफॉर्म करके निकलेंगे। ना कहकर फिट्स ग्लास को बहुत बुरी तरह से खींचता है, उसके पूरे जिस्म पर घाव होते हैं और वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। सामने ही उसने एक गड्ढा बनाया होता है, ग्लास को वो उस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डालने लगता है। लड़का कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। फिट्स कहता है आज नहीं तो कल इसने मरना ही है ना, और जैसा कि हमने वादा किया था कि इसका अंतिम संस्कार प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, इसीलिए मैं इस पर मिट्टी डाल रहा हूँ। उसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद वहाँ से चला जाता है और लड़के से कहता है कि तुम भी मेरे पीछे जल्दी से आ जाओ, नहीं तो पकड़े जाओगे। वो लड़का भी हालांकि जाना नहीं चाहता लेकिन मजबूर था, उसे भी तो अपनी जान का खतरा था, इसलिए वो ग्लास के ऊपर अपनी बॉटल रख के वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसे मालूम नहीं था फिट्स तो झूठ बोल रहा है और आसपास कोई कबीले के लोग नहीं हैं। और अब ग्लास यहाँ पर अकेला है जो कि बेचारा तड़प रहा है। ग्लास काफी टाइम तक जहाँ पर उसको दफना कर गए हैं वहीं अधमरी हालत में लेटा रहता है, लेकिन फिर वो पूरी हिम्मत जुटाता है और रेंगते हुए उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसके बेटे की लाश थी। वो अपने बेटे की लाश पर सर रख के कई घंटों तक लेटा रहता है। कुछ देर बाद जब उसको भूख लगती है तो फिर वो रेंगते हुए खाने की तलाश में थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक मछली का कंगाल नजर आता है। हड्डियों को तोड़ने पर उसे थोड़ा सा अंदर मांस मिलता है।
उसे खाने के बाद बड़ी मुश्किल से वो रेंगते हुए एक पहाड़ की चोटी पर जाता है। नीचे देखने पर उसे पता चलता है कि नीचे एक नदी है। इस वक्त वो था तो बहुत तकलीफ में, लेकिन फिर भी हिम्मत करता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है। और जब वो बेचारा पानी पीता है तो पानी तो उसकी गर्दन से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्दन तो कटी हुई थी। ग्लास की जैकेट में अब थोड़ा सा बारूद होता है, जिसको वो अपने जख्म पर लगा देता है। फिर वो आग जलाता है और आग की चिंगारी से अपनी गर्दन, यानी कि जहाँ पर उसको जख्म था ना, वहाँ पर आग लगाता है, जिससे बारूद के जलने से एक चिंगारी पैदा होती है। इस तरह उसकी गर्दन जल जाती है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो जो गर्दन पर उसका घाव था ना, वो जलने की वजह से आपस में चिपक जाए। लेकिन उस आग से दोस्तों उसको इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है, पानी पीकर, घास खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। मगर एक दिन वो कबीले के लोग उसी नदी के पास आ जाते हैं। इससे पहले कि वो ग्लास को पकड़ पाते, ग्लास पानी में छलांग लगा देता है और तैरते तैरते नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाता है। अब वो कई दिनों तक इसी नदी के किनारे रहता है, क्योंकि अब उसको यहाँ पर कई दिन बीत चुके हैं, इसलिए उसके घाव थोड़े बहुत अब भर चुके हैं। एक लकड़ी के सहारे वो थोड़ा बहुत चल भी पा रहा है। जैसे कि वो नदी के करीब है तो पानी की तो उसे कोई कमी नहीं, लेकिन खाना फिर भी उसने कई दिनों से पेट भरकर नहीं खाया। कभी कभी वो बस एक मछली पकड़ लेता है, जिससे वो अपने आप को सिर्फ जिंदा रख सकता है। एक रात जब वो सो रहा था तो उससे आस पास कुछ आग के शोले नजर आते हैं। आगे बढ़ने पर वो देखता है कि एक आदमी ने एक बहुत बड़ा शिकार किया है। उस आदमी की जैसे ही नजर ग्लास पे पड़ती है तो वो अपना तीर निकाल कर उस पर तान देता है, जबकि ग्लास कहता है कि मुझे बस खाना चाहिए। वो बोल तो नहीं सकता था, इसलिए बस इशारे से ही उसे समझाता है। और मेरी ये हालत एक जंगली भालू ने की है और मेरे ही लोगों ने मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये जो आदमी है, इसकी भी पूरी फैमिली को गांव के लोगों ने जलाकर मार दिया। उसे ग्लास पर तरस आ जाता है, वो उसकी तरफ खाना फेंकता है। सुबह होने पर वो ग्लास से कहता है कि तुम मेरे साथ सफर कर सकते हो। इसके बाद ये दोनों आगे का सफर शुरू करते हैं और इस आदमी के पास एक घोड़ा भी होता है, जिससे इनका सफर जरा आसान हो जाता है। दूसरी तरफ वो लड़का और फिट्स जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो उस लड़की को फिट्स की बातों से ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई कबीले के लोग नहीं थे, बल्कि उसने मुझसे झूठ बोला। इस बारे में वो फिट्स से सवाल भी करता है, लेकिन फिट्स उसे डरा धमका कर आगे का सफर शुरू करने को कहता है। सफर के दौरान ये दोनों एक गाँव से गुजरते हैं जो कि अब बिल्कुल तबाह हो चुका था। इनको यहाँ पर 2 घोड़े भी मिलते हैं। घोड़ों पर सवार होकर ये अपने आगे का सफर करते हैं और वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं जहाँ इनको पहुँचना था। मगर फिट्स उस लड़के से कहता है कि इनको कभी भी सच मत बताना, अगर उन्हें सच पता चला ना तो वो हमें सूली पर चढ़ा देंगे। अब ये दोनों कैप्टन के पास जाते हैं। दरअसल कैप्टन और उसकी टीम पहले ही यहाँ पर पहुँच चुकी थी। कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को $100 देता है, लेकिन वो लड़का बिना पैसे लिए वहाँ से चला जाता है। कैप्टन जरा हैरान होता है, लेकिन फिट्स कहता है कि सफर में जो कुछ हुआ इस वजह से वो लड़का जरा सदमे में है, शायद इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। एक्चुअली इस लड़की को ये गिल्ट था कि उन्होंने वो काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। दूसरी ओर ग्लास उस आदमी के साथ आगे के सफर पे है, तभी तेज तूफान आ जाता है। ग्लास क्योंकि बीमार है, घायल है, उसके जख्म सड़ रहे हैं, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। वो आदमी ग्लास के लिए लकड़ियों से एक छोटी सी झोंपड़ी बनाता है और ग्लास को उसके अंदर लिटा देता है। उसको हर तरफ से कवर कर देता है और सामने आग लगा देता है, ताकि ग्लास को पूरी तरह से गर्मी मिले और उसके जख्म भी जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन दोस्तों, जब सुबह ग्लास उठता है तो उसे वो आदमी कहीं भी नहीं मिलता। थोड़ा आगे चलने पर वो देखता है कि उस आदमी को किसी ने फांसी लगाकर दरख्त के साथ लटका दिया है, और ये काम कुछ फ्रांस के लोगों का होता है। अब फ्रांस छुपते हुए उनके घोड़ों तक पहुंचता है, जहाँ पर एक फ्रांसीसी लड़का एक लड़की के साथ ज्यादती भी कर रहा था। ग्लास उस लड़की को बचाता है, उनके कुछ लोगों को गोली मार के वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद रात ग्लास एक पेड़ के नीचे गुजारता है, लेकिन जब सुबह होती है, उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि कबीले के लोग उस तक पहुंचने ही वाले हैं। ये उनके 1-2 लोगों को गोली मार के घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब उन कबीले के लोगों के पास भी तो घोड़े हैं, वो अपने घोड़ों से इसका पीछा करते हैं। अब सामने एक पहाड़ होता है और नीचे खाई होती है, लेकिन ग्लास अब रुक भी तो नहीं सकता था। अगर वो रुकता तो वो लोग उसे गोली मार देते, उसे पकड़ लेते। इसलिए ग्लास अपने घोड़े समेत उस खाई में छलांग लगा देता है। नीचे एक पेड़ था, जिस पर टकराने के बाद वो सीधा बर्फ पे जाकर गिरता है। घोड़े की तो जगह पर ही मौत हो गई, लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा है। अब भले ही वो गिरने की वजह से तो नहीं मरा, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो ठंड में मर सकता है। ऊपर से जिस भालू की खाल और तक अब तक वो बचा हुआ था, वो भी उससे ऊपर ही छूट गई।
लेकिन अब ठंड से बचने के लिए वो घोड़े का पेट काटता है और अंदर से सारा मांस बाहर निकालता है। रात में वो वहीं पर सो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर बाहर रहा तो वो ठंड से ही मर जाएगा, इसलिए पूरी रात वो किसी तरह से घोड़े के पेट के अंदर ही गुजारता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जहाँ पर फिट्स और ग्लास की बाकी की सारी टीम है, वहाँ पर एक फ्रेंच सर्वाइवल आता है जो कि इनसे हेल्प मांगता है और ये लोग हेल्प के बदले में उससे कुछ पैसे मांगते हैं। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं होते, जितने पैसे होते हैं वो उन्हें दे देता है, साथ में अपनी वाटर बॉटल भी देता है जो उस लड़के ने जाते टाइम ग्लास के ऊपर रखी थी। बॉटल देखते ही उस लड़के को लगता है कि बेशक ग्लास तो मर गया है लेकिन उसका बेटा हॉक अभी भी जिंदा है, इसलिए इस आदमी को ये बॉटल हॉक से मिली होगी। ये इस आदमी से पूछता है तुम्हें ये बॉटल कहाँ पर मिली? वो आदमी कहता है यहाँ से 30 मील दूर मुझे गिरी हुई मिली थी, इसलिए मैंने उठा ली। अब कैप्टन और उसकी टीम हॉक यानी कि ग्लास के बेटे को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन फिट्स समझ आता है कि ग्लास अभी तक जिंदा है क्योंकि हॉक को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। कैप्टन, विजय और उसके बाकी साथी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें वो बॉटल मिली थी। वहां पहुंचने पर इनको वहां पर ग्लास मिलता है। कैप्टन तो ग्लास को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि फिट्स और विजय ने बताया था कि ग्लास के मरने के बाद तो हम उसको दफना कर आए हैं। ग्लास को अपनी आंखों के सामने देखकर कैप्टन फौरन ऑर्डर देता है कि विजय और फिट्स को अरेस्ट कर लो। अब वो गुस्से में अपने कैंप में वापस आते हैं। विजय को तो वो लोग पकड़ लेते हैं लेकिन फिट्स को वो चारों तरफ ढूंढता है, उसे वो कहीं नहीं मिलता। जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो देखता है कि फिट्स उसकी अलमारी से सारे पैसे लेकर भाग गया। कैप्टन बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि मैं जरूर उसको पकड़ कर लाऊंगा क्योंकि एक तो उसने हॉक की जान ली है, हमारे साथ गद्दारी की, ऊपर से हमारा पैसा भी चुरा लिया। लेकिन ग्लास कहता है कि मैं भी साथ जाऊंगा। साथ ही वो कैप्टन को बताता है कि विजय को अभी तक हॉक की मौत के बारे में नहीं पता। फिट्स ने तो विजय से भी सब कुछ छुपाया और झूठ बोला। ग्लास और कैप्टन दोनों अब उसकी तलाश में निकल जाते हैं। दरअसल वो उसके घोड़ों के निशान को फॉलो कर रहे थे, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर निशान भी गायब हो जाते हैं क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही थी। दोनों फैसला करते हैं कि हमें अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए। कैप्टन जब फिट्स को ढूंढ रहा था तो वो एक पत्थर के पीछे से निकलता है। कैप्टन को वो गन पॉइंट पर ले लेता है। कैप्टन कहता है कि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है, इसलिए तुम चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो नहीं मानता और कैप्टन को ही गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ग्लास को वहाँ पर कैप्टन की लाश मिलती है और आसपास कोई नहीं था। अब वो पास से एक बड़ी सी लकड़ी तोड़ता है और उससे कैप्टन के पीठ पे लगा देता है ताकि उसकी कमर सीधी हो जाए। कैप्टन को वो आगे वाले घोड़े पर बिठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है। ये दरअसल उसका प्लान था ताकि फिट्स को ये लगे कि आगे घोड़े पे जो बैठा हुआ है वो ग्लास है और पीछे कैप्टन की लाश है। इसका ये प्लान वर्क भी करता है। फिट्स को वाकई में लगता है कि आगे बैठा हुआ ग्लास है और पीछे घोड़े पर कैप्टन की लाश है, इसलिए वो आगे बैठे हुए आदमी पर गोली चला देता है। गोली चलते ही वो नीचे गिर जाता है। इस तरह फिट्स को लगता है कि ग्लास भी अब मर चुका है, इसलिए वो धीरे धीरे लाश के पास आता है। जैसे ही वो लाश को पलटता है तो देखता है कि वो ग्लास नहीं बल्कि कैप्टन की लाश है। ये ग्लास पीछे वाले घोड़े से उठकर उस पर गोलियां चलाने लगता है। इसमें से एक गोली सीधा जाकर फिट्स के कंधे पर लगती है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी फिट्स वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। ग्लास भी उसका पीछा करते हुए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां पर इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है। इस लड़ाई में दोनों ही काफी जख्मी भी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नदी के पार वही कबीले के लोग आ जाते हैं जो कि इनको मारना चाह रहे थे। ग्लास जब फिट्स को मारने लगा होता है तो उसे उसी आदमी का चेहरा नजर आता है जिसने इसको खाना दिया था और जान बचाई थी। उसने कहा था कि बदला लेने वाली जात सिर्फ ऊपर है, इसलिए ग्लास बिना मारे फिट्स को नदी में छोड़ देता है। फिट्स बहते हुए उन्हीं कबीले के लोगों के हाथ लग जाता है जो कि फौरन पकड़कर उसे मार देते हैं। फिर वो कबीले के लोग नदी के इस पार आ जाते हैं जहाँ पर ग्लास था, लेकिन ये लोग ग्लास को नहीं मारते क्योंकि दरअसल उन्हें अपनी बेटी मिल गई थी और ये वही लड़की थी जिसको ग्लास ने बचाया था। यही वजह थी कि वो ग्लास को छोड़कर वहाँ से आगे निकल जाते हैं। ग्लास अभी भी बहुत जख्मी था। आखिर में उसे अपनी बीवी की सोल नजर आती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ग्लास की आंखों में आंसू थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।